Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I bring a very fantastic and knowledgeable video for a 12th class student, and today I would like to discuss haloalkanes and haloarenes. In this chapter, first of all, I will give you theoretical theoretical things or explanation of a theoretical all the topics that what are the haloalkanes and haloarenes, and how we will prepare haloalkanes and haloarenes, and also very important points are like physical and chemical properties of the haloalkanes and haloarenes, then their chemical properties, and very special type of the technical term that is known as optical activity or optical isomerism. In this chapter I will include, so that's why this is very important, and I would like to tell you important that this is the important part of the first term examination, and from this chapter very too much questions are coming, and all questions are coming on the I think according to the multiple choice questions or MCQs or optional questions, in which you will be a take of a one answer from four options, but how you will take with the help of the your knowledge. That is why I thought that first of all I have to make a video for the 12th class student that is very helpful, and I think reduce your exam fear, exam phobia for the haloalkanes and haloarenes. I know that you all understand that chemistry is not simple, but I would like to tell you that if you will use some technical terms, some technical strategies, some technical things, by the help of your hard work, you will become over that kind of fear. So let's start without wasting time. I would like to first of all explain all the things what is which are regarding the haloalkanes and haloarenes. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि हम हेलो एल्केन्स किसे कहेंगे. अब देखो, आपने एल्केन्स पढ़े हैं. एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2. ठीक है. अब ये आपका एल्केन का फॉर्मूला है. इसी एल्केन का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे आपका CH4 है. ठीक है. CH4 के हाइड्रोजन को पहली बार में एक हाइड्रोजन को, दूसरी बार में दूसरे हाइड्रोजन को, तीसरी बार में तीसरे हाइड्रोजन को, फोर्थ टाइम में फोर्थ हाइड्रोजन को अगर आप हटा देते हो उसकी जगह से, या फिर जब वो रिप्लेस कर देते हो किससे, FCl, Br और I से, तो जो नया कंपाउंड बनता है वो हेलोएल्केन्स बनता है. हेलोएल्केन्स उनसे बनाए जाते हैं. ठीक है. अब हेलोएल्केन के लिए एक हेलो वर्ड कहाँ से आया. ये 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर, FCl, Br, जिन्हें हम X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और X का मतलब है FCl, Br. ठीक है. तो ये आपके हेलोएल्केन्स हैं. सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम किसी भी एल्केन से है ना वन और मोर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन atoms in a hydrocarbon, aliphatic or aromatic by corresponding halogen atom, fluorine, chlorine, bromine, iodine, results in the formation of alkyl halides or haloalkenes. ठीक है. और एरिल हैलाइड्स, अगर हमने बेंजीन का हाइड्रोजन हटाया है तो बनेगा एरिल हैलाइड. ये एरिल वर्ड का अच्छे से समझ लो. एरिल का मतलब है आपका बेंजीन का आप हाइड्रोजन हटा रहे हो तो अराइल बन रहा है, एरिल या अराइल कह सकते हो. और CH4 में से आपका हाइड्रोजन हट रहा है, CH3 बन रहा है, तो आपका हेलोएल्केन्स बनेगा. तो दो टेक्निकल टर्म्स हो गए. अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, अगर हम भूल भी जाते हैं तो एक और तरीका हम समझा सकते हैं आपको, कि अगर हम ये मान लें कि जैसे हमारे पास CH3 CH2Br है. ठीक है. तो CH3 CH2Br में ये Br sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन से जुड़ा हुआ है. मतलब हेलोएल्केन में कोई भी हेलोजन एलिमेंट कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन से जुड़ा होता है.
अटैच होता है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। और अगर हम हेलो एरिन्स की बात करें तो वहाँ पर बेंजीन की रिंग होती है। बेंजीन की रिंग, पूरी बेंजीन आपकी प्लेनर होती है। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड सारे कार्बन। तो उन कार्बन से, चलो एक सेकंड। हेलो चिल्ड्रन, तो थोड़ी सी व्यवस्था हो गई थी, इस वजह से मैं आपको बता रहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि जब एल्केन से 1 2 3 4 हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, वहाँ पे हैलोजन को लगा देते हैं, तो उसे हम हेलो एल्केन्स कहते हैं। एक्चुअली क्या है, ज़्यादातर बच्चों को यही बात समझ नहीं आती, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन में अंतर क्या है। तो हेलो एल्केन्स में हैलोजन एलिमेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, और हेलो एरिन्स के अंदर जो हैलोजन का एलिमेंट होता है वो जुड़ा होता है किससे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। चलिए अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अभी तक तो हमने ये सब बातें देख ली, और मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल भी बता देता हूँ कि जैसे मान लो CH3Cl है, CH3Cl, तो ये आपका हेलो एल्केन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहीं पर क्लोरोबेंजीन बना देते हैं तो आपका हेलो एरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलो एरीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम सबसे पहले एक बात चेक करते हैं। जैसे मान लो हमने अभी एक एग्जांपल दिया कि CH3Cl, तो इस मिथाइल क्लोराइड के अंदर या क्लोरोमीथेन के अंदर केवल एक हैलोजन एलिमेंट है, तो इसे हम मोनो बोलेंगे, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है। अगर हमने CH2Cl2 कर दिया तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका एक और हाइड्रोजन हटा दिया तो केवल CHCl3 बना दिया, तो इसमें 3 हाइड्रोजन हो गए, तो ये आपका ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गई बात है? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा। अब अगर हम सारे हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो बन जाता है CCl4। क्या बन जाता है? CCl4। तो इस CCl4 में 4 क्लोरीन हैं। कितने क्लोरीन हैं? 4 क्लोरीन। तो ये आपका टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बता दिए 4 टाइप के हैलोजन डेरिवेटिव। आपको बता दिया मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो, डाई, ठीक है, और ट्राई और टेट्रा, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल आप लर्न कर लोगे, अंडरस्टैंड? ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ डाई हैलोजन डेरिवेटिव में। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव में 2 स्पेशल केस हैं, उन्हें समझा देते हैं। अगर हम जैसा कि हम देख रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर कि 2 कार्बन हैं, ठीक है। इस कार्बन में एक Cl यहाँ पर लगा हुआ है, एक Cl यहाँ पर लगा हुआ है, समझ रहे हैं? मतलब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हुए हैं, तो इसे हम जैम डाई हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैम डाई हैलाइड, ठीक है। इसे हम इथाइलिडीन क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, या 1,1 डाईक्लोरोईथेन के नाम से भी जानते हैं। ये वाला जो कंपाउंड है 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम आइसोप्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। चलिए अब ये एक केस हो गया। दूसरा केस, हमने 2 कार्बन बनाए और उन दोनों कार्बन पे हमने एक पे Cl एक पे Br लगा दिया, तो ये एडजेसेंट कार्बन के ऊपर आपका अगर लग रहा है FCl Bri, है ना, तो उसे हम बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे उसे? विसिनल डाई हैलाइड, अंडरस्टैंड? तो विसिनल डाई हैलाइड में आपके FCl Bri होते हैं वो अलग अलग कार्बन के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोसेस है डाई हैलोजन का, थोड़ा सा एक अलग सी आपका क्लासिफिकेशन था। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर हैलोजन की। तो न्यूक्लियर हैलोजन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, कार्बन बेंजीन के कार्बन पे जहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज है उससे जुड़ा हुआ है। ये ब्रोमोबेंजीन है, ये आयरोबेंजीन है। अगर फ्लोरीन लगा दे तो फ्लोरोबेंजीन हो जाता है, ठीक है। और भी टाइप का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एग्जांपल्स यहाँ पे देखें।
वो आपके मोनो हैलोजन डेरिवेटिव थे बेंजीन के, या आपके डाई हैलोजन डेरिवेटिव हैं बेंजीन के। इसे हम कह सकते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसे बोलते हैं 2 ब्रोमोटॉल्वीन या ऑर्थो ब्रोमोटॉल्वीन। ठीक है, ऑर्थो। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, ये आपकी मान लीजिए बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन में मान लीजिए आपका Cl लगा हुआ। अब ये Cl डिसाइड करेगा सारे कार्बन की पोजीशन। तो इस कार्बन की पोजीशन होगी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6 है। ठीक है, अब जो आपका 2 और 6 है, 2 और 6 मैं यहीं बगल में कर देता हूँ, ये तो आपका ऑर्थो हो जाएगा, है ना। और ये आपका 3,5 है, ये आपका मेटा हो जाएगा। 4th हो जाएगा पैरा। तो ये आप पोजीशंस चेक कर लीजिए, इन पोजीशन के आधार पर सारी की सारी हैलोजन कंपाउंड्स की आपकी क्या होता है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर सकते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन स्टडी कर सकते हैं, और उन्हें हम पहचान सकते हैं कि वो किस टाइप के कंपाउंड्स हैं, वो गैसेस हैं, लिक्विड हैं, है ना, किस टाइप के कंपाउंड्स हैं। चलिए, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, तो उससे अगर कोई FCl जुड़ा हुआ है, अगर एक है तो बेंजिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक है तो बेंजिल। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं 1-क्लोरो-1-फिनाइल और मीथेन, 1-क्लोरो-1-फिनाइल मीथेन कह सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो 1-डाइक्लोरो-1-फिनाइल मीथेन कह सकते हैं। इसे हम बेंजल बोलेंगे। एक होता है बेंजिल BENZYL और एक होता है बेंजल BENZAL। ठीक है, एक बेंजल है, एक बेंजिल है। तो बेंजल और बेंजल में बहुत अंतर है। बात समझ में आएगी? तो यहाँ पर अगर 3 लगा दिए तो हो जाएगा बेंजो। क्या हो जाएगा? बेंजो। अब यहाँ पर स्पेशल केस देख लेते हैं। मान लीजिए बेंजीन के ऊपर इथाइल था, इथाइल के पहले वाले कार्बन पे Br लगा दिया। अब ये पहले वाले कार्बन पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब Br लगेगा तो ये फर्स्ट हो जाएगा पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन हो जाएगी। तो बोलेंगे 1-ब्रोमो-2-फिनाइल ईथेन। 2 कार्बन ना, इसलिए हम ईथेन बोलेंगे। अगर हम इसके अलावा और क्लासिफिकेशन चेक करते हैं तो एक और क्लासिफिकेशन का टाइप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका मोनोडाई ट्राई टेट्रा हो गया। और इसके बाद एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स भी हो गए। इन्हें हम एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स या एरिल हैलाइड्स के नाम से जानते हैं। कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कार्बन की पोजीशंस बताई गई हैं। तो हमने आपको छोटी क्लास के अंदर कार्बन की पोजीशंस बताई थी कि कार्बन कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो एक तो आपका होता है, अगर CH3CH2Cl है तो ये आपका प्राइमरी है। ठीक है, तो प्राइमरी क्लोरीन कार्बन है तो उस पर Cl लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने 1, 2, 3 लगा दिए Cl तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा, तो ये आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अगर हम एक कार्बन को 3 और कार्बन से जोड़ देते हैं, है ना, उस पर Bl या Cl कुछ भी लगा देते हैं तो उस टाइप के एल्किल हैलाइड को टर्शरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। अब देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं पर इस टाइप के ऑर्डर होते हैं कि ये आपका प्राइमरी है ना, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड का ऑर्डर है। किसके लिए? SN2 मैकेनिज्म के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ऑर्डर होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शरी एल्किल हैलाइड। अब कैसे आप समझोगे कि आपको कंपाउंड कैसे समझ में आएंगे कि उनके अंदर जो FCl लगा हुआ है तो कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है। एक्चुअली एल्किल हैलाइड्स के अंदर तो हाइब्रिडेशन आपकी ऐसे ही कैसी होती है, sp3। चलिए, अब हम एक और बात समझते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, क्या? जैसे 1, 2, 3 कार्बन बना लिए, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, यहाँ पर आप Cl लगा दो। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम अलाइलिक हैलाइड कहेंगे। क्या बोलेंगे? अलाइलिक।
अगर हमने क्या किया, मतलब अलाइलिक हैलाइड के अंदर हैलोजन एलिमेंट ऐसे कार्बन पे अटैच होता है जिस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 होती है, उसका जो पड़ोसी होता है एडजेसेंट कार्बन होता है, उस कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp2। देख रहे हैं आप, ये sp2 है, ये आपका sp3 है, इस पर आपका आयोडीन लगा हुआ है। अब नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करेंगे तो नोमेनक्लेचर में 1 2 3 मतलब इधर से ही नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपकी नंबरिंग की जाएगी। अंडरस्टैंड। चलिए, अब जब लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करी जाएगी तो इस तरीके से हम नंबरिंग कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ये है कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे नोमेनक्लेचर हो रहा है। ठीक है, नोमेनक्लेचर हमने समझ लिया। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन के साथ डबल कोई भी FCl Bri लगा हुआ है, ठीक है, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम विनाइलिक हैलाइड भी कहते हैं। तो विनाइलिक हैलाइड में आपका विनाइल क्लोराइड तो आता ही है ना, ये आप देख रहे हो 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन है या हेक्स1इन है, या फिर बेंजीन पर कोई FCl Bri लगा होता है, क्योंकि बेंजीन के कार्बन भी तो sp2 होते हैं, है ना, तो उनके द्वारा जो हेलो एरिन्स बनते हैं वो भी विनाइलिक हैलाइड के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और एलेबोरेशन करते हैं। अभी तक हमने आपको क्लियर बता दिया, एक बार मैं फटाफट से रिवीजन करता हूँ। अगर हेलो एल्केन के 1 2 3 4 किसी भी हाइड्रोजन को हटा करके, एक बार में तो हटेंगे नहीं, अलग अलग रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके कोई भी FCl Bri लगा दिया जाता है तो बनता है हेलो एल्केन। अगर बेंजीन के किसी भी हाइड्रोजन को 1 2 3 4 हाइड्रोजन को हटा करके FCl Bri सब्स्टिट्यूट लगा दिया जाता है तो उस केस में हेलो एरिन बनता है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स दो टाइप के होते हैं। हेलो एरिन में न्यूक्लियस वाले आपके मोनो डेरिवेटिव, डाई डेरिवेटिव होते हैं। उसी तरीके से साइड चेन में भी FCl Bri लगा सकते हैं, एक बेंजिल होता है, एक बेंजल होता है, एक बेंजो होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसकी हेलो एल्केन्स की बात करें तो ये आपके 7-8 टाइप के होते हैं। नंबर 1 मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, नंबर 2 डाई हेलोजन डेरिवेटिव, नंबर 3 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, नंबर 4 टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, इसके साथ साथ जिस टाइप के कार्बन पर FCl Bri जुड़ा होता है उसी के आधार पर भी हेलो एल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव, सेकेंडरी हेलोजन डेरिवेटिव और टर्शियरी हेलोजन डेरिवेटिव। अंडरस्टैंड। इसके साथ साथ एक और बात, अलाइलिक हेलोजन डेरिवेटिव हो सकता है और विनाइलिक हेलोजन डेरिवेटिव हो सकता है। ये सारे के सारे आपके क्लासिफिकेशन थे। अब हम इनका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। जब हम नोमेनक्लेचर देखते हैं तो एक बात का ध्यान रखते हैं कि FCl Bri को हम पहले बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा IUPAC को। तो आपका CH3Cl है, इसे क्लोरोमीथेन कहेंगे। CH3CH2 Br है, इसे ब्रोमो ईथेन कहेंगे। CH3CH2CH2I है, इसे आयरोप्रोपेन बोलेंगे, है ना। CH3CH CH3 है, ये आपका स्पेशल केस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इसे क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और इसे हम बोलेंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसे क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये आपका 4th क्वेश्चन है, 4th आपका एग्जाम्पल है ना। ये है आपका N ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि ये चेन में लगा हुआ है। जब कोई स्ट्रेट चेन होती है तो हम N ब्यूटाइल, N पेंटाइल, N हेक्साइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 आइडो के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो, 2 आइडो, इसे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर आपका 1 2 3 ये आपका लगा हुआ है तो ये आपका है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या है, आपका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। जहाँ पे ब्रोमाइड लगा है तो ब्रोमाइड है, वहाँ क्लोराइड लगा हुआ है तो क्लोराइड है। ये आपका टर्शरी एल्किल हैलाइड है, इसे हम टर्ट ब्यूटाइल या टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, और आगे भी चलते हैं, ये आपका क्लोरोपेंटेन है। ठीक है, अमाइल पेंटेन के नाम से जानते हैं। ये आपका 2 क्लोरो है ना, 2 क्लोरोपेंटेन है। अब 2 क्लोरोपेंटेन आप समझ रहे हैं, 1 2 3
और 4, तो मतलब थर्ड नंबर पे जब क्लोरीन मिथाइल लगा होता है तो उसे हम बोलेंगे 1-क्लोरो-3 मिथाइल ब्यूटेन। ये क्या है? 1-क्लोरो-3 मिथाइल ब्यूटेन। इसे हम आइसोपेंटाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आइसोपेंटाइल क्लोराइड। अब हम इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 और 4 5। तो ये आपका टर्ट पेंटाइल क्लोराइड है। ये क्या है? टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे? टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। ये आपका है नियो पेंटाइल क्लोराइड। पेंटाइल बना लिया, नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं 1-क्लोरो-2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। इसे क्या बोलेंगे? 1-क्लोरो डाईमिथाइल ट्राइक्लोरो 1-क्लोरो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इस टाइप से आपके क्लासिफिकेशन दिए गए हैं कि आपका क्लोरोफॉर्म है, ये आइडोफॉर्म है ना, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इस तरीके से आपका पूरी टेबल आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ये से मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं आपको कर देता हूँ, पॉज कर देना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अभी का भी प्रैक्टिस करें। मेरे वीडियो को जब भी देखें तो एक बात का ध्यान रखें, कॉपी पेन लेके बैठें और तभी मेरे वीडियो पे कंसंट्रेट करें। जब तक कॉपी पेन नहीं लोगे बेटा, तब तक बात बनने वाली नहीं है, ठीक है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, कॉपी पेन लेके बैठो। और अब हम इन क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर बोला गया है इन्होंने सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोला है इन्होंने? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोला है? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब ये होता है 1 2 3 है ना, 4 और यहाँ पे Cl लगा दो, बन गया Cl। बाकी का आप बैलेंस ही हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया तो वैसे ही कर लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड के देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो होता है वो आपका सेकेंडरी एल्केल हैलाइड होता है। और जो आपका आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड होता है, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड होता है, ये आपका प्राइमरी आपका हैलाइड होता है, प्राइमरी एल्केल हैलाइड होता है। हर जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपका था। इसके बाद है आपका टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अभी तो हम बता के गए, ऐसा कार्बन जो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, उस पर FCl लगा हुआ है, उसे टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल फ्लोराइड, इस तरीके से बोला जाएगा। फिर आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, कुछ नहीं है, 1 2 3 3 कार्बन बनाओ और बीच वाले कार्बन पे Br लगा दो, लगा दिया तो ये आपका बन जाएगा 2-ब्रोमो-प्रोपेन। अंडरस्टैंड? चलिए, 2-ब्रोमो-प्रोपेन हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। यहाँ 1 2 3 4 है तो सेकंड कार्बन पर आपका आयोडीन लगा हुआ है, तो इसे बोलेंगे 2-आइडो-2-मिथाइल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? 2-आइडो-2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इस तरीके से 2-आइडो-2-मिथाइल ब्यूटेन। तो ये आपका 2-आइडो-2-मिथाइल ब्यूटेन आपको कैसे बनाना है, 2-आइडो-2-मिथाइल ब्यूटेन आपको कैसे बनाना है, इस बात को समझ लो। जैसे ये आपका 2-आइडो, हाँ, अमाइल आयोडाइड को हम ऐसे ही तो बोलेंगे 2-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब हम आते हैं F पर, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 कार्बन और कहीं पर भी आपका CH3 और पहले नंबर कार्बन पे आपका Br लगा हुआ है। इसे हम 1-ब्रोमो-3-मिथाइल ब्यूटेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चन को करना ज़रूरी है। हाँ, ये आपका एग्जाम्पल है। IUPAC नेम आपको बताने होता है, तो IUPAC नेम क्योंकि वो आपके एल्काइल हैलाइड मैंने करा दिए। अब एरिल वाले इस टाइप के कंपाउंड भी मैं थोड़ा सा समझा दूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका बेंजीन के, है ना, बेंजीन के ऊपर कार्बन है, उस पर साइड चेन पे Cl लगा हुआ है। ये एक्चुअली बेंजिल क्लोराइड है, इसे क्या बोलेंगे? बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, इसे बोलेंगे बेंजिल क्लोराइड। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं क्लोरोफिनाइल मीथेन। क्या बोलते हैं?
क्लोरोफिनाइल मीथेन, मतलब मीथेन पर क्लोरो भी लगाए और फिनाइल भी लगाए, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्लोरोफिनाइल मीथेन, ठीक है। अगर हम बी की बात करते हैं तो 1 2 3 पहले नंबर कार्बन पर क्या लगा हुआ Br और थर्ड नंबर कार्बन पर लगा हुआ है फिनाइल, तो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, क्या हो गया 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 2 कार्बन हैं, तो यहाँ पर होगा 1,1 डाइक्लोरो और 2 फिनाइल इथेन, ये इथेन हो जाएगा, इथेन पर फिनाइल लगा हुआ है। डी पर देखते हैं, इसमें थर्ड नंबर कार्बन पर जो आपका मेटा है, ये आपका मिथाइल टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन के मेटा पे लगा हुआ है, इसकी पोजीशन क्या है थर्ड। तो दो तरीके से इसका नाम बोल सकते हैं, 3 क्लोरोटॉल्यूइन या मेटा क्लोरोटॉल्यूइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ये आपको इस वीडियो में कराया जा रहा है, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, है ना, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। तो आई होप यू विल डू दैट। चलिए अब हम बात करते हैं ई पोर्शन की। इसमें एक ही कार्बन पर 3 लगे हुए हैं क्लोरीन, ठीक है, तो इसे बोलेंगे ट्राईक्लोरोफिनाइल मीथेन, इसे क्या बोल सकते हैं ट्राईक्लोरोफिनाइल मीथेन। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की, सॉरी एफ वाले की, तो इसमें मेटा पर 1 पर क्लोरीन 1 पर ब्रोमीन लगा हुआ है। अब हम फर्स्ट पोजीशन किसे बोलें, तो फर्स्ट पोजीशन इसके केस में Br को बोली जाएगी और क्लोरीन को, तो Br फर्स्ट पर है तो 1 ब्रोमो, 3 पर है आपका क्लोरो, डी पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकली हम IUPAC करते हैं, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। तो हो जाएगा नाम आपका इसका 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब हम इसे करते हैं जी को, बाकी की आप होमवर्क में लीजिए। 2 क्लोरो, इसमें क्या हुआ 2 क्लोरो 2 फिनाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 फिनाइल ब्यूटेन, ये 2 कार्बन ये हैं, ये आपका थर्ड है, 4 है, तो ब्यूटेन है। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में काफ़ी है। मैं एक बार फिर आपको याद लगा दूं, मेरे वीडियो आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे इस चैनल पर। इस चैनल का नाम है न्यू क्वांटम क्लासेस। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे वीडियो को लाइक भी करें। लाइक के साथ साथ कुछ कमेंट करें, अगर कमेंट बॉक्स में कुछ मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ओके बाय बाय।